Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of statistical mechanics in which today we are going to discuss about Planck's radiation formula or Planck's radiation law. So, Planck's radiation law or Planck's radiation formula, this is actually the application of Bose-Einstein statistics. So, Bose-Einstein statistics के एप्लीकेशन के फॉर्म में हम यहां पर प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला डिराइव करेंगे. According to quantum theory, the radiant energy occurs in energy packet. So, quantum theory के according radiant energy एक्चुअल में हमारी एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है. इसका मतलब किसी को भी अगर आप एनर्जी दोगे तो वो हमारी पैकेट के फॉर्म में होगी. These packets are known as क्वांटा और फोटोन. और ये जो एनर्जी पैकेट हैं इनको क्वांटा या फोटोन कहते हैं. The energy of packet should be h nu. और हर एनर्जी पैकेट की जो एनर्जी है या हर फोटोन की जो एनर्जी है वो हमारी h nu होती है. एंड मोमेंटम शुड बी h nu by c. Here nu is the frequency of photon and c is the velocity of light or velocity of photon and h is Planck's constant. So अगर आप किसी को भी रेडिएंट एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो एनर्जी हमारी एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होगी. हर पैकेट की जो एनर्जी है वो h nu होगी एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा वो h nu by c होगा. और ये जो पैकेट है इनको हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं. Since photons are indistinguishable particles having rest mass 0 and spin quantum number s is equal to 1, that is integral spin, it means photons are both particle. क्योंकि फोटोन हमारा इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, इनका स्पिन क्वांटम नंबर 1 है, मींस इंटीग्रल स्पिन है. इसका मतलब फोटोन एक्चुअल में बोथ पार्टिकल होंगे. तो इसके ऊपर बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स हम अप्लाई कर सकते हैं. So, photons are both particle and hence Bose-Einstein statistics can be applied. Now, we consider a chamber. So, यहाँ पर हमने एक chamber consider किया है. Let the volume of this chamber be V and the temperature of this chamber be T. So, इस chamber का volume V and temperature T है. और ये जो chamber है इसके अंदर हमने radiation fill किए हैं. So this chamber is filled with radiation. The radiations are in thermal equilibrium with the walls of the chamber. और इसके अंदर जो radiation fill की हुई है ये radiation available है. These radiations are in thermal equilibrium with the wall of the chamber. So ये radiation इस chamber की wall के साथ में thermal equilibrium में है. And the energy density of radiation in frequency range nu and nu plus d nu is u nu d nu. So इसमें जो रेडिएशन फिल की हुई है इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू में जो एनर्जी डेंसिटी है वो हम यू न्यू डी न्यू लेते हैं. इन मोमेंटम स्पेस पार्टिकल्स विद स्मॉल वॉल्यूम h क्यूब बाई v आर इंडिस्टिंग्विशेबल. सो मोमेंटम स्पेस में स्मॉल वॉल्यूम h क्यूब बाई v में जो पार्टिकल्स होंगे वो हमारे इंडिस्टिंग्विशेबल होंगे. सो दे रिप्रेजेंट एन आइगन स्टेट. इसलिए ये जो पार्टिकल है ये एक आइगन स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे. एट एनी इंस्टेंट ऑल द पार्टिकल्स हैविंग मोमेंटम बिटवीन p and p plus dp will lie in a cell of volume 4 pi p square dp. सो किसी भी टाइम में मोमेंटम रेंज p and p plus dp में जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो स्मॉल वॉल्यूम 4 pi p square dp में लाई करेंगे. So the total number of eigenstate, इसलिए total number of eigenstate क्या आ जाएगा? Gp dp is equal to 4 pi p square dp divided by h cube by v. और ये v हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा. So Gp dp equal to 4 pi v divided by h cube p square dp. For photon p equal to h nu by c. So photon के लिए p equal to h nu by c होता है. तो यहां से dp क्या आ जाएगा?
h अपॉन सी इंटू डी न्यू। सो डीपी की वैल्यू ये है एंड जीपी डीपी की वैल्यू हमारे पास में ये है। सो टोटल नंबर ऑफ आइगन स्टेट इन द वॉल्यूम 4 pi p square dp will be this one. Now gp dp equal to 4 pi v upon h cube p square dp आया है एंड dp की वैल्यू h by c d nu है। Now from these two equations we get g nu d nu equal to, so g nu d nu के लिए 4 pi v upon h cube as it is, और ये जो p है इस p की जगह आप h nu by c रखो एंड dp की जगह h by c d nu रखो। सो g nu d nu इक्वल टू 4 pi v upon h cube, इस p की जगह h nu by c आ गया, सो h nu by c होल स्क्वायर, और dp की जगह h by c d nu आ गया, सो h by c इंटू d nu, और ये क्या हो जाएगा, सो g nu d nu इक्वल टू 4 pi v upon h cube h nu upon c होल स्क्वायर h by c d nu। नाउ यहां पर h स्क्वायर और ये h, सो h क्यूब बन गया और h क्यूब से h क्यूब कैंसिल हो गया, सो g न्यू डी न्यू क्या आ जाएगा 4 पाई v, सो 4 पाई v न्यू स्क्वायर अपॉन c क्यूब, सो न्यू स्क्वायर अपॉन c क्यूब इनटू d न्यू, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ g न्यू d न्यू। देयर आर टू इंडिपेंडेंट डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन फॉर रेडिएशन, सो रेडिएशन के लिए टू इंडिपेंडेंट डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन होगी, इसलिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। So total number of eigenstate lying in the frequency range nu and nu plus d nu, इसलिए nu and nu plus d nu frequency range में जो total number of eigenstate होगी वो क्या होगी, g nu d nu is equal to 8 pi v nu square upon c cube into d nu, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए इक्वेशन हमको ये मिल गई है। फ्रॉम बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, अब बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ा हुआ है, सो वहां से dn इक्वल टू जी न्यू डी न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा ई माइनस 1, क्योंकि ni क्या था, ni इक्वल टू जी आई अपॉन ई रेज टू अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस 1, सो dn हो गया जी न्यू डी न्यू अपॉन ई रेज टू अल्फा प्लस बीटा ई माइनस 1, और जी न्यू डी न्यू ये है, तो ये वैल्यू आप यहां पर रख दो, तो dn क्या आ जाएगा, सो dn इक्वल टू 8 पाई v न्यू स्क्वायर अपॉन c क्यूब, तो ये हमारा एज इट इज, और आपने g न्यू डी न्यू की जगह ये पूरी वैल्यू रखी है, सो इनटू d न्यू अपॉन e रेज टू अल्फा प्लस बीटा e माइनस 1, सो dn इक्वल टू 8 पाई v न्यू स्क्वायर अपॉन c क्यूब इनटू 1 अपॉन e रेज टू अल्फा प्लस बीटा e माइनस 1 d न्यू, सो dn की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। नाउ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अब पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, dn की वैल्यू हमारी ये है, तो ये जो फोटॉन्स है ये न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज में है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, सो आप इस dn को v से डिवाइड कर दो, तो जैसे dn को v से डिवाइड करोगे ये v कैंसिल हो जाएगा, सो dn अपॉन v इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन c क्यूब डी न्यू अपॉन e रेज टू अल्फा प्लस बीटा e माइनस 1, सो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमको ये मिलेगा। नाउ एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, अब हर फोटोन की एनर्जी इक्वल टू h होती है, हियर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी, सो अगर आप इसका डिफरेंशियल करोगे सो d इक्वल टू h d न्यू, सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी, सो अगर हम एनर्जी डेंसिटी निकालें या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालें तो वो क्या मिलेगा, यूनिट डी न्यू इक्वल टू डी एन अपॉन बी इंटू एच न्यू, सो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास में ये है, इसको आप एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी, सो यूनिट डी न्यू इक्वल टू डी एन अपॉन वी इंटू एच न्यू, क्योंकि हर फोटोन की एनर्जी इक्वल टू एच न्यू है, सो डी एन बाई वी इंटू एच न्यू करोगे तो आपको यू न्यू डी न्यू मिलेगा, बट डी एन अपॉन वी हमारे पास में ये है, सो 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू एच न्यू इंटू डी न्यू अपॉन ई रेज टू अल्फा प्लस बीटा ई माइनस 1, सो जैसे आपने 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब को एच न्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, तो 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब और डी न्यू अपॉन ई रेज टू अल्फा प्लस बीटा ई माइनस 1 एज इट इज।
since beta equal to 1 upon kt and if alpha equal to 0, so beta हमारा 1 upon kt होता है, here k is Boltzmann's constant, and अगर alpha की वैल्यू 0 हो then यहां पर हो गया 0, so e raised to beta e and beta की जगह हम 1 upon kt रखेंगे, so u nu d nu equal to 8 pi h nu cube upon c cube d nu upon e raised to h nu by kt minus 1, तुमको ये इक्वेशन मिल जाएगी. So energy per unit volume or energy density will be this one, and this is Planck's radiation formula and it is also known as Planck's law. So Planck's radiation formula या Planck's law के according u nu d nu equal to 8 pi h nu cube upon c cube d nu upon e raised to h nu by kt minus 1. Now here we discuss some special cases. So when h nu is very much less than kt, so अगर h nu की वैल्यू kt के कंपैरिजन में बहुत कम हो then e raised to h nu by kt will be nearly equal to 1 plus h nu by kt. और इस 1 को आप यहां पर लेके जाओगे, so e raised to h nu by kt minus 1 equal to h nu by kt, and u nu d nu is equal to dn upon v into h nu था, और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 8 pi h nu cube upon c cube into d nu upon e raised to h nu by kt minus 1, एंड e raised to h nu by kt minus 1 की जगह h nu by kt आ गया, तो जैसे आप यहां पर h nu by kt रखोगे तो kt न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो u nu d nu इक्वल टू 8 pi h nu क्यूब अपॉन c क्यूब इनटू kt अपॉन h nu इनटू d nu. अब यहां पर इस h से ये h कैंसिल कर दो, एक न्यू से न्यू कैंसिल होगा, सो u nu d nu इक्वल टू 8 pi kt न्यू स्क्वायर अपॉन c क्यूब d nu. सो u nu d nu की वैल्यू हमको ये मिलेगी, so u nu d nu equal to 8 pi kt upon c cube into nu square d nu, and this is Rayleigh-Jeans law. So Rayleigh-Jeans law हमको इस कंडीशन में मिलेगा जो कि u nu d nu equal to 8 pi kt upon c cube into nu square d nu होगा, and when h nu is very much greater than kt, so अगर h nu की वैल्यू kt के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो then e raised to h nu by kt minus 1 will be nearly e raised to h nu by kt. Now u nu d nu क्या था, u nu d nu equal to 8 pi h nu cube upon c cube into d nu upon e raised to h nu by kt minus 1, and e raised to h nu by kt minus 1 हमारा nearly e raised to h nu by kt होगा, तो ये हट जाएगा, so u nu d nu equal to 8 pi h nu cube upon c cube into d nu upon e raised to h nu by kt. So u nu d nu equal to 8 pi h nu cube upon c cube e raised to minus h nu by kt into d nu, and this is actually Wien's law. So अगर h nu की वैल्यू kt के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो तो हमको Wien's law मिलेगा, and according to Wien's law u nu d nu equal to 8 pi h nu cube upon c cube e raised to minus h nu by kt d nu. Now total energy density u by v is equal to 8 pi h upon c cube integration 0 to infinity nu cube upon e raised to h nu by kt minus 1 d nu. So हमने एनर्जी डेंसिटी का 0 से इन्फिनिटी रेंज में इंटीग्रेशन कर दिया है, सो टोटल एनर्जी डेंसिटी आपको ये मिलेगी, एंड लेट h nu by kt इक्वल टू x. सो h nu by kt को आप x मान लो, तो हो गया x, एंड यहां से अगर हम d nu निकालेंगे सो d nu आ जाएगा kt अपॉन h इंटू dx. सो इस d nu की जगह आप ये रखोगे, सो u by v इज इक्वल टू 8 pi h अपॉन c क्यूब इंटीग्रेशन न्यू क्यूब हो जाएगा kt अपॉन h इंटू एक्स होल क्यूब, नीचे आ गया e रेज टू x माइनस 1 इंटू डी न्यू हो गया kt अपॉन h इंटू dx. अब यहां पर ये kt बाई h होल क्यूब और ये kt बाई h
सो kt by h होल रेज टू 4 आ जाएगा. सो u अपॉन v इज इक्वल टू 8 pi h अपॉन c क्यूब इंटीग्रेशन k रेज टू 4 t रेज टू 4 डिवाइडेड बाय h रेज टू 4 x क्यूब अपॉन e रेज टू x माइनस 1 dx. और लिमिट क्या आ जाएगी 0 टू इंफिनिटी. सो डी न्यू आ गया kt अपॉन h इंटू dx. नाउ u बाई v हो जाएगा 8 पाई h अपॉन c क्यूब. इस न्यू की जगह आप kt अपॉन h इंटू x रखोगे और यहां पर क्यूब है इसलिए kt बाई h इंटू एक्स फुल क्यूब. यहां पर आ गया x तो e रेज टू x माइनस 1. डी न्यू हो गया kt बाई h इंटू dx. सो kt बाई h होल क्यूब इंटू kt बाई h तो हो गया kt बाई h होल रेज टू 4. यहां पर x क्यूब बच गया so x क्यूब डिवाइडेड बाई e रेज टू x माइनस 1 dx एंड लिमिट 0 टू इंफिनिटी. सो u बाई v की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी और इससे आ जाएगा u बाई v इक्वल टू 8 पाई h अपॉन c क्यूब kt बाई h होल रेज टू 4. और इसको अगर सॉल्व करोगे तो दिस इज पाई रेज टू 4 अपॉन 15. Now let b equal to 8 pi raised to 5 k raised to 4 upon 15 c cube h cube. यहाँ पर ये h raised to 4 और ये h तो एक h कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा k raised to 4 t raised to 4 upon h cube एंड बाहर है 8 ये pi raised to 4 और ये pi so pi raised to 5 डिवाइडेड बाय 15 c cube और हमने 8 pi raised to 5 k raised to 4 upon 15 c cube h cube को b माना है. So u by v is equal to b t raised to 4. So u upon v equal to b t raised to 4. And this is Stephens-Boltzmann's law. और ये हमारा Stephens-Boltzmann's law है. So u by v equal to b t raised to 4. Now here we end our session. In today's session we have discussed about Planck's radiation formula. So goodbye.